अभी हम एक और हवाला सुनेंगे खुदा के कलाम में से, जो कि आज का मेन जो हवाला है। आज सारे चर्चों में पूरी दुनिया में वो पढ़ा जाता है और उसको मत्ती की इंजील है, उसने लिखा है। उसका 21वां बाब है और पहली आयत से 9वीं आयत तक है। और भाई मोहिंदर से मैंने कहा है वो उसको पढ़ेंगे पंजाबी में। तो जो लोग नेट पे हमारे साथ इस पैगाम को शेयर करेंगे, मैं उनको भी प्रभु यीशु के मुबारक नाम में खुशामदीद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ उनका, जी आया नू कहता उन्होंने। तो मैं भाई मोहिंदर को भी दावत दूंगा कि वो आके हमारे लिए खुदा के कलाम में से पढ़े। सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਫਾਈ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸਫਾਈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਤ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦੀਪਿਕ ਜੀਵਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਹੈਕਲ ਦੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਔਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੇਥਾਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਧੀ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹੀ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ,
पर होरनां ने बिरछां दियां डालियां वढ के रस्ते ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹਸੋਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। Thank you, Bhai Mahinder. Det är texten ifrån Matteus evangeliets 21 kapitel 1-9. Och jag kommer att tala om, predika över Guds ankomst och mottagande, vad Gud vill, att han vill bosätta hos oss och hur vi tar emot Gud i våra liv. इससे पहले कि मैं आपके साथ वचन जो है वो बांटूं, शेयर करूं, आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे और उस पवित्र पाक खुदा की हजूरी को पुकारेंगे। प्यारे मेहरबान आसमानी बाप, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो कि आप एक ऐसे खुदा हैं जो कि रहम और प्यार से भरे हुए हैं। जब हम आपके दर पे एक बार आते हैं, आप हमें कभी अपने पास से नहीं निकालते हैं। और कलाम ये बताता है कि आप कैसे यरूशलेम आए, किस तरह आप हमारे जीवन में, हमारे घर में आना मांगते हैं। आपका शुक्र हो, धन्यवाद हो, आपकी ताकत का, आपके प्यार मोहब्बत का। आपने जो कुर्बानी हमारे लिए दी कि हम मुआफ़ी में जी सकें, हमारे गुनाह, हमारे पाप माफ़ किए जाए, हमारा जीवन है वो आपके पाक लहू में धो के पाक और साफ़ किया जाए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। आज के इस पैगाम के लिए, कलाम के लिए जो आपने मुझे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ कि आप अपना पाक रूह मेरे ऊपर और हम सब के ऊपर उंडेलें और हमारी आंखों को अपनी रोशनी दें अंदर से, ताकि हम समझ सकें, देख सकें कि आप इस वक्त हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सोचें अगर कोई आपको ये बताए कि आज वो खुदा जो कि सारी कायनात का खुदा है, मालिक है, जिसने सारी दुनिया की, पूरे कायनात की सृष्टि की है, खालिक और मालिक है, आपको बनाने वाला है, आपको ज़िंदगी देने वाला खुदा है, आज वो आपके घर आ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या अपने दिल में आप कैसे विचार करेंगे कि आप कैसे उसको अपने घर के अंदर न्योता देंगे, दावत देंगे, बुलाएंगे? तो बाइबल तो यही बताती कि ये वो खुदा है जो हर चीज़ का मालिक है, खालिक है, और वो इंसान के साथ बात करना मांगता है, रहना मांगता है, अपना डेरा हमारे बीच में डालना चाहता है। हमने कुछ हवाले सुने हैं, लेकिन मैं एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हिंदी में पढ़ूँगा, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, सिर्फ बोलनी आती है, लेकिन कुछ खत हैं जो कि हमारे जो रसूल थे पौलुस, उन्होंने लिखे 10 खत। उनमें से ये एक खत है कुलिसिया के नाम। कुलिसिया एक कलीसिया थी, चर्च था ग्रीक लैंड में या तुर्की में था। तो वो वहाँ पे लिख के हमें ये बात जो है वो बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं होगी हिंदी समझने में। तो वो ऐसे लिखते हैं, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और बेनती करने से नहीं चूकते। कहता कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, मतलब कि रूहानी जो तालीम है,
उसे समझ कर परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, उसके काबिल हो, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यीशु ने यह भी कहा एक जगह पे कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तो हमारे जीवन में क्या फल आते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा जीवन का जो पेड़ है, दरख्त है, वो कैसा है। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और लिखते हैं, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। और लिखते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलवाया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी में सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। तो वो खुदा जो है जिसमें सब कुछ रचा गया है, जो आदि और अंत है, आज का पैगाम तो ये बताता है कि वो आपके और मेरे जीवन में आना चाहता है। तो क्या हमारा इसके लिए रिएक्शन होगा? बहुत सारे सवाल जो थे उस वक्त भी लोगों के मन में थे कि जैसे कि आपने सुना, भाई महेंद्र ने पढ़ा, उन्होंने ये सवाल किया जब देखा प्रभु यीशु आए हैं, एंटर किए हैं जो शहर था यरूशलेम, उसमें उन्होंने सवाल किया ये कौन है। तो ये सवाल आज भी लोग करते हैं कि कौन है, और कौन खुदा है, ये जानना हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी या बाबरकत बात है, या आशीष से भरी हुई बात है कि हम ये जान सकें कि खुदा कौन है। यहूदी जो थे उन्होंने भी ये सवाल किया, बल्कि यहूदी जो थे वो बड़ी भारी बहस भी करते थे यीशु के साथ इसके ऊपर कि वो कौन है। जब वो प्रभु यीशु बताते थे कि मैं कौन हूँ, तो वो उनका विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यूहन्ना की इंजील जो है उसमें ये बताया गया है, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप ही पढ़ेंगे तो वहाँ हिंदी में लिखा है, आदि में वचन था, उर्दू में कहेंगे इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम परमेश्वर खुदा था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पंजाबी चलो शब्द भी कहते, आदि विच शब्द सी, और शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। और लिखा है उसमें जीवन था, उसमें जिंदगी थी, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, इंसानों का नूर थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, अंगीकार ना किया, कबूल ना किया। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। परंतु अब यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के बारे में कहा जा रहा है, वो आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति, सच्चा नूर जो हर एक इंसान को प्रकाशित करता है, जगत में आने वाला है था। ये बात कर रहे हैं क्रिसमस के आने की, खुदा के आगमन की। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे ना पहचाना। पर वो अपने घर आया
अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे कबूल किया, ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और 14वीं आयत में लिखा है, और वचन शब्द देहधारी हुआ, जिस्म में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये बात फिर से दोहराई जा रही है कि खुदा ने इंसान के बीच में डेरा किया। शब्द जो है वो देहधारी हुआ, जिस्म में आया, हमारे बीच में डेरा करने के लिए, हमें निजात देने के लिए हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो कलाम तो हमें ये बताता है कि खुदा जो है वो खुद इस दुनिया में हमारे बीच में आया हमें बचाने के लिए। मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा कि क्यों खुदा को आना पड़ा। तो अभी भी यही बात, आज का जो मैसेज है, आज के दिन का, फर्स्ट एडवेंट का, जो हमने मत्ती की इंजील में से भी सुना कि उसका मकसद और उसका मंजिल जो थी वो ये था कि यरूशलेम में आना। तो यरूशलेम जो शहर था खुदा को पहचानता और उसे कबूल करता। तो ये कबूल करने की जो है वो बात है कि खुदा जब हमारे घर आता है, दस्तखत देता है, हमारे दरवाजे पे दस्तखत देता है अपनी, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं, उसकी सुनते हैं। तो यही क्रिसमस का पैगाम है। इसीलिए क्रिसमस जो है, बड़ा दिन जो है, हम उसको मनाते हैं कि खुदा इंसानों के बीच में जिस्म में आया, देहधारी हुआ। तो ये पैगाम है कि खुदा जब हम खुदा को अपने घर में, अपने जीवन में आने देते हैं, उसको कबूल करते हैं, तो हमारे जीवन में के साथ फिर क्या होता है। जब यीशु यरूशलेम में आया तो यरूशलेम ने खुदा को कबूल नहीं किया। उन्होंने नारे लगाए, होशाना दाऊद के बेटे। होशाना कोई नारा नहीं है, दरअसल होशाना जो है वो एक पुकार है, दुआ है कि जो इंसान मुसीबत में देते थे यहूदी लोग, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे होशाना कि ऐ खुदा हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद कर। लेकिन उन्होंने खुदा को जो था वो पहचान नहीं सके। और ये बात हमें कैसे मालूम पड़ती है, ये अगर आप आगे की जो तलावत है उसको पढ़ें। जैसे भाई महेंद्र ने कहा था कि वो उन्होंने सफाई किया कि हैकल की, पाक हैकल जो थी उसकी सफाई, उसका क्या मतलब था अभी आप सुनेंगे। मत्ती की इंजील उन्होंने 11 तक पढ़ा, लेकिन 12वीं आयत बताती है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। वहां बिजनेस चल रहा था, वो बिजनेस करते थे खुदा की हैकल में, पाक हैकल जो थी, मंदिर जो था खुदा का वहां पर। और सिर्फों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर, ये खुदा कहता है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की मांद खो बना दिया है। कि लूट मार मचाई है, लूट मार मची थी खुदा के घर में। और खुदा को ये देखकर ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि खुदा की हैकल के बाहर जो बिजनेस था वो चल रहा था। तो वो बिजनेस क्या था, ऐसे वो लोग जो आम लोग थे वो बिजनेस जो था वो नहीं कर रहे थे। जो लोग बिजनेस कर रहे थे, वहाँ का बिजनेस सारा चला रहे थे, वो वहाँ के सरदार काहिन और पादरी थे। वो ये बिजनेस करते थे, क्योंकि जब आप खुदा की पाक हैकल में आते थे तो आप कुर्बानी देते थे। तो कुर्बानी के जो जानवर होते थे वो जहाँ से वो आते थे, वो पादरियों के जो खेत खलियान होते थे, उनका एक बिजनेस उन्होंने बनाया हुआ था कि आपको अगर हैकल में कुर्बानी देनी है तो आपको हैकल में ही कुर्बानी का जो मेमना है या बछड़ा है या कबूतर है वो खरीदना है। और जो वो फिर उनसे चार्ज करते थे वो 20-25 गुना ज़्यादा होता था। तो लुट मार मचाई हुई सी कि बाहर से तो लोग एक मेमना जो था वो सस्ते में खरीद के कुर्बानी दे सकते थे, लेकिन वो उनको मना कर रखा था। तो जब वो हैकल में आते थे तो जो जानवर होता था वो उन्हीं का ही खरीदना पड़ता था।
तो इस वजह से बताया जाता है कि जो पादरी थे, सरदार काहिन जो थे, याजक जो थे, पुरोहित जो थे, मौलवी जो थे वहाँ के, वो इतने अमीर हो गए थे कि उनके पास बेहिसाबा पैसा था, और वो पैसा लोगों को लूट कर आया था। वो बिजनेस नहीं था, वो लूट मार ही थी। और ये लूट मार जो थी वो खुदा के घर में चल रही थी। इस बात से यीशु का गुस्सा जो था, पवित्र गुस्सा जो था, वो भड़का था, और उसने उनको वहाँ, सबको वहाँ से निकाल दिया था, और खुदा को घर से ना इंसाफी से और बेईमानी से साफ किया था। और लिखा, जैसे कि लिखा कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर होगा, जहाँ लोग आके दुआ करेंगे। तुमने उसे डाकुओं की मांद बना दिया है। तो ये बिल्कुल एकदम उसके बाद के यीशु यरूशलेम में आए हैं, बिल्कुल एकदम उसके बाद हुआ है। तो ये बात ये दर्शाती है या बताती है या बयान करती है कि यरूशलेम के जो लोग थे वो खुदा को कबूल करने के लिए, पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब आज भी ये जो वादे हैं ये यीशु ने किए कि मैं दोबारा आऊँगा, इससे पहले कि खुदा दोबारा आएगा इस दुनिया में हमें लेने, मेरा ये यकीन है कि खुदा अपने चर्च में, अपनी हैकल में पहले आएगा, अपने लोगों के पास, मसीही लोगों के पास पहले आएगा। और उसने ये बहुत सारी बातें जो है पहले से बयान की हैं कि मैं आऊँगा। और उसका क्या मकसद है? उसका ये मकसद है कि हम तैयारी कर सकें उसके आने की, अपने आप को तैयार कर सकें। और यरूशलेम ने अपने आप को तैयार नहीं किया था, और ना उन्होंने खुदा को पहचाना और ना खुदा को कबूल किया। और ये बात ये बताती है ये बात कि जिस तरह से यीशु ने, जो खुदा की पाक बड़ी हैकल थी जिसे बनाने में 40 साल लग गए थे, जो सुलेमान बादशाह था उसने बनाई थी, उसके बाद हेरोदेस ने बनाई थी। जो सुलेमान बादशाह की जो हैकल थी वो ढा दी गई थी, 40 साल उसको लगे थे दोबारा बनाने के लिए। तो पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते थे दुआ करने के लिए। यरूशलेम जो था वो दुआ का गढ़ था, बहुत से लोग आते थे। तो ये बात ये साबित करती है कि लोगों ने अपने जीवन को पाक साफ नहीं किया था और खुदा को कबूलने में नाकाम हुए थे। लेकिन खुदा चाहता था कि वो तैयार होते उसके लिए, अपने जीवन को तैयार करते, ज़िंदगी को तैयार करते। उन्होंने ये मौका जो था यरूशलेम ने उस वक्त गवा दिया था। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसको कहे यरूशलेम, सलामती का शहर, शांति का शहर। अगर आज भी आप यरूशलेम की हिस्ट्री उसके बाद देखें, आज भी देखें, तो यरूशलेम खुदा की शांति से वंचित है, महरूम है, वहाँ कोई शांति नहीं है। तो कुछ बातों के जो नतीजे होते हैं वो बड़ी देर तक असर जो है वो रहते हैं। तो किस तरह से आज का जो पैगाम है कि खुदा क्या चाहता है, खुदा ये कहता है कि मैं आपके पास आता हूँ, आपके जीवन में आता हूँ और आपके दस्तखत देता हूँ आपके दरवाजे पे। आप सोच सकते हैं कि यहाँ का जो बादशाह है स्वीडन का, अगर आज ये अनाउंस कर दे कि मैं कल ओरेब्रू आऊँगा, क्या ऐसे हो सकता है? शायद हो सकता है, लेकिन ऐसे होता नहीं। हमें मालूम है ऐसे कभी नहीं होगा। बादशाह ने अगर आना है वो 1 साल पहले या 2 साल पहले अनाउंस करेगा कि मैंने 2 साल बाद ओरेब्रू आना है। क्यों? क्योंकि वो मौका देगा ओरेब्रू के लोगों को कि वो उसके आने की तैयारी कर सके। और तैयारी क्यों वो चाहता है? क्योंकि वो हर कोई चाहता है कि अगर आप किसी के घर में भी जाते हैं, दावत पे जाते हैं, आप ये कहेंगे कि आपका जो स्वागत है वो अच्छे से किया जाए। और बादशाह जो है यहाँ का वो भी यही चाहेगा कि लोग तैयारी कर सकें कि उसको अराइवल जो है उसको अच्छे से रिसीव किया जाए। तो आप सोचें कि जो पूरी कायनात का खुदा है, बादशाह है, जीवन देने वाला है, निजात देने वाला है, पापों को से मुआफ़ी देने वाला है, अपनी उसने देह को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम उसके लहू से मुआफ़ी पाएं, उसमें पाक साफ किए जाए। वो क्यों नहीं चाहेगा कि जब वो आए हमारे जीवन में कि हम उसके लिए तैयारी कर सकें, या अपने घर को तैयार कर सकें, अपने जीवन को तैयार कर सकें और उसे अच्छे से रिसीव कर सकें। रिसीव की ही बात है।
खुदा ये चाहता है कि सिर्फ मकसद जो है, लक्ष्य जो है, हिंदी में उसे कहते हैं, या मंजिल उर्दू में आप कह सकते हैं, उसका लक्ष्य जो ये नहीं है कि वो आ सके। अनकॉम्स्ट कहते हैं स्वीडिश में खुदा के आने को। आज फर्स्ट एडवेंट पे ये मनाया जाता है, अराइवल को। सिर्फ ये नहीं है बल्कि कबूल करना भी है, लेकिन ये कबूल करना भी मंजिल या लक्ष्य नहीं है। जब हम स्वीडन में आए, जो जितने ज़्यादातर जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम बाहर से आए हैं। जब हम स्वीडन में यहाँ आए थे तो हमारा क्या लक्ष्य था, हमारी क्या इच्छा थी, हमारी क्या मर्जी थी, हमारी क्या चाहत थी? ये चाहत थी कि स्वीडन हमें एंटर करने दे, किसी तरह एंट्री मिल जाए, सामने अंदर आ जाइए ऐसे। लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं था, सिर्फ ये हमारी एक मांग थी, एक ज़रूरत थी। दूसरी जो हमारी ख्वाहिश होती है जब हम एंटर हो जाते हैं कि हमें यहाँ रहने के लिए कबूल कर लिया जाए। बड़े पापड़ बेल दे कबूल होने ली, पता नहीं क्या क्या हमें करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम कबूल कर लिए जाए। और जब हम कबूल हो जाते हैं तो वो भी हमारे जीवन का लक्ष्य या मंजिल नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य जो मंजिल है वो ये है कि हम यहाँ बस सके, बास कर सके, रह सके। आपको शायद मालूम हो, स्वीडिशों की हिस्ट्री 1800 सदी से बहुत सारे स्वीडिश लोग जो थे वो यहाँ से स्वीडन छोड़ के चले गए थे। उनको उत्वांद्रारे बोलते हैं। और वो तब यहाँ पे बड़ी गरीबी थी, खाने के लिए आलू भी नहीं मिलता था, इतनी गरीब थे लोग। और उनका लक्ष्य जो था, उनकी चाहत जो थी वो ये था कि किसी तरह हम अमेरिका पहुँच जाए, हमें एंट्री मिल जाए, वहाँ पे हमें कबूल कर लिया जाए, कबूल लिया जाए। लेकिन ये उनका मेन मकसद नहीं था या लक्ष्य नहीं था। जो लक्ष्य था वो ये था कि हमें बसने दिया जाए, हम वहाँ बास कर सकें, हम वहाँ रह सकें। और जो फिर उत्वांद्रारे थे वो वहाँ पे जाके इनवांद्रारे बन गए। जैसे हम उत्वांद्रारे थे, अपने मुल्क से आए, यहाँ हम इनवांद्रारे बन गए। लेकिन आखिर में जो उनको नाम दिया गया था वो था बूसेतारे, जो वहाँ बस गए हों। आज हम ज़्यादातर हमारे जो हम में से जो लोग आज हैं वो हम बूसेतारे हैं, हमें कबूल कर लिया गया, हम यहाँ बस गए हैं। तो जब खुदा हमारे घर में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो वो भी बसना चाहता है, हमारे साथ डेरा करना चाहता है, बसेरा करना चाहता है। उसको हिंदी और उर्दू में यही कहेंगे। मैं आपसे थोड़े से लफ्ज़ जो है कलाम, चंद आयतें जो हैं वो मैं शेयर करूँगा कि वही मुकाशवा की आखिरी जो किताब है उसमें क्या लिखा है इसके बारे में, यीशु क्या कहते हैं। लिखा है, ये यीशु कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यीशु की यहाँ पे दोबारा रिपीट किया गया इसी बात को कि मैं, जब खुदा ये कहता कि मैं भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। आपने एक सबसे पहले हम जो एक लफ्ज़ यहाँ स्वीडन में सीखते हैं वो है कोम्पिस। आपको मालूम है कोम्पिस का मतलब क्या है? असल में दोस्त हम कह सकते हैं, लेकिन कोम्पिस जो है एक लातीन का लफ्ज़ है और उसका मतलब है, कोम्पिस वो होता है जिसके साथ आप बैठ के रोटी तोड़ते हैं, खाना खाते हैं, वो आपका कोम्पिस है। सड़क पे कोई मिल गया सलाम दुआ के लिए, वो कोम्पिस नहीं है। जिसके साथ आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। तो मसीह यीशु यही कह रहा है कि मैं आके बास करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी को शेयर करना चाहता हूँ, ज़िंदगी देना चाहता हूँ। और जैसे कि शुरू में मैंने आपसे ये पैगाम शेयर किया था बाइबल की आखिरी किताब में से, मुकाशवा की किताब में से, जहाँ पे लिखा है कि खुदा अपना डेरा इंसानों के बीच में लगाएगा। तो खुदा अपना डेरा, वो खुदा जो अबदी है, वो खुदा जो कभी नहीं मरेगा, वो खुदा जो जिंदगी देने वाला है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो मुर्दों में से जी उठा है वही जिंदगी दे सकता है।
जो मर गए हैं वो हमें जिंदगी तो नहीं दे सकते हमेशा की अब्दी जिंदगी। इंसान हो या नबी हो या गुरु हो या रब्बी हो या पोप हो या बिशप हो या पादरी हो, वो हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकते, क्योंकि वो मर के चले गए हैं, वापिस नहीं आएंगे। वापिस वही आएगा जो कि जिंदा है, जिंदा हो गया है। तो बाइबल हमें ये बताती है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है, उसने मौत और कब्र पे विजय पाई है, तो वो ही हमें भी हमेशा का जीवन जो है वो दे सकता है। तो वो खुदा जो है वो हमारे जीवन में आना मांगता है, वास करना मांगता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशकिस्मती की बात है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक छोटी सी कहानी, जो कि सच्ची कहानी है, जो तकरीबन 60 साल पुरानी है, इस ओरेब्रू की है। एक छोटा लड़का था, एक दिन संडे की सुबह में वो अपने माँ बाप को बिना बताए अपने घर से निकल गया और कई घंटे वापस नहीं आया। तो माँ बाप बड़े परेशान थे, पता नहीं कितने गया है, कहाँ चला गया, बता के नहीं गया है। तो कई घंटों के बाद जब वो घर वापस आया तो बाप बड़े गुस्से में था। उसने पूछा, कहाँ गए थे आप, कहाँ रहे, बताया नहीं है वो। तो उन्होंने कहा, मैं चर्च गया था। उसने कहा, चर्च गए थे, कौन से चर्च? उन्होंने कहा, वो चर्च जो शहर में है। तो उसके पिता ने कहा, चर्च शहर में तो कई चर्च हैं, आप कौन से चर्च में गए थे? वो जो बीच सेंट्रम में है। उसने कहा, लेकिन बीच सेंट्रम में भी कई चर्च हैं, कौन से चर्च गए थे आप? वो जो नदी के किनारे है, वो नदी के किनारे भी कई चर्च हैं ओरेब्रू में, तो आप किस चर्च में गए थे? आखिर उसने थक के बोला, भाई मैं वो उस चर्च में गया था जिस चर्च ने यीशु को बाहर खड़ा कर रखा है, और वो मेरा पुराना चर्च है त्रिफाल्दी है। वहाँ यीशु बाहर खड़े हैं लोगों को वेलकम करने के लिए, लेकिन उसने अपनी पहचान ये बताई कि मैं उस चर्च में गया था जहाँ चर्च के लोगों ने यीशु को चर्च के बाहर खड़ा किया। तो हमें ये सोचना है कि हम मसीही लोग किस तरह के मसीही लोग हैं। वो मसीही हैं जो यीशु को अपने घर से बाहर खड़ा करते हैं, या वो चर्च है जो प्रभु यीशु को चर्च के बाहर खड़ा करते हैं, या वो हमारे अंदर है, उसको अंदर आने। तो आज हमारे पास ये मौका है, क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा लिखा है कि वो कहता, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ कि खुदा हमारे जीवन पे दस्तखत देता है। जो कोई जिसके कान हो वो सुन ले। अगर हम सुन सकते हैं अपने अंदर के कान से, रूहानी कान से, तो हम उस खटखटाहट को सुन सकेंगे। स्वीडिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जिसको बोलते हैं बुलता। बुलता जो है वो दरअसल खटखटाना नहीं है, ऐसे बुलता है, ऐसे खटखटाना, उसको कहते हैं बुलता करना। तो वो खटखटा रहा है पूरे जोर से आपके और मेरे घर में आने के लिए। तो वो मसीही लोग, आज के जो हम मसीही लोग हैं, हमें उसकी आवाज़ सुननी है कि खुदा हमारे घर में आना चाहता है, वास करना चाहता है। आखिर में मैं अपना जो आवाज़ है वो ख़त्म करना चाहूँगा एक आखिरी हवाले के साथ, कि खुदा हमें जीवन में बार बार ये मौका देता है कि हम उसे अपने अंदर आने दें, उसको पहचाने, जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसने हमें बनाया, उसे हम पहचान सकें। और जब आपसे पहले भी मैंने कहा था कि यरूशलेम ने उसको कबूल नहीं किया, पहचाना नहीं, और भी कुछ बातें हैं जो इस बात की गवाही देती हैं। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब पढ़ें तो वहाँ लिखा है ऐसे, ये यीशु कहते हैं, और ये एक डिसपॉइंटमेंट है जो यीशु बयान करते हैं कि यीशु कितना मायूस होकर ये बात करता है। और उसकी 37वीं आयत में लिखा है ऐसे, यरूशलेम यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे जाते हैं उन पर पत्थर वाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी के बारे में सोचें या पढ़ें या जानें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैगाम लेके आया था